अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलना। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा सा और ज़ोर से बोलो। हेलो। जी हाँ, आ रही है बट थोड़ी सी हल्की आ रही है। अच्छा। आप सही है, हाँ सही। अब बोलो। ओके सर। So shall I start sir? बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम। Sir, our project title is self-controlled floor cleaning and mopping robot. My group member is me, Shirozgul, and my group partner is Shabaz Shams. Our project advisor is Sir Safiuddin Qadri. Like this. The introduction of our project. Robots are machines which are programmable and are able to carry out complex tasks with minimal human interactions. Robots for domestic applications have been rising. थोड़ा Floor ज़ोर से cleaning and आवाज़ नहीं आ mopping रही। robots are domestic applications have been rising. Floor mopping robots are famous. Various robots present in the world. Only some robot can be used in the household chores of man. One special kind of robot that is very useful for everyone is cleaning and mopping robot. A simple and robot reduce the human in the cleaning process, which can be a time-taking process. These robots can be used anywhere. Examples: office, house, industries, etc. So the design and fabrication of this project is design of cleaning and mopping robot. Start with the design of simple and most effective for the robot, which is very important part as it has all weight on the robot. Electronics components used on the robot are decided, which is include the type of motor and its specifications that are to be run the boat. The microcontroller, the motor drivers, the wheel, and other electronic components to be used on the robot. Once are proceed assembling the component and finally testing and calibration the device are done. Sir, our project has three mode: mopping mode, drying mode, and Android mode. In mopping mode, the robot is mop the all the floors that are decided in programming, and the drying mode is we are use the servo motor for our drying mode. And sir, Android mode is we are using a mobile application for phone to connect the mobile Bluetooth with our robot to start and to operate with them. Sir, our aim and objective of our project is clean the floor and shortage of time, expected cleaning, many maximum efficiency, minimize cost, easy operated, and safety. Motivation, sir. Sir, in this project, motivation is this is the advanced technology. I think in Pakistan there is no any this type of technology launch. I think China is the first country to launch this type of technology. So this technology is time saving and market value is we are research the market. I think 70% people is interested in this technology. This is the cost effective and unique project. So this project is fulfill the people demand. People want the clean, good cleaning and floor mopping system. This project is fulfill the people demands. So in this, there is feasibility and portable. We are easily pick the robot in our hands, and I think everyone is afford this type of robots. The next blog diagram, membership I should describe you. जी, इसको कौन एक्सप्लेन अस्सलाम करेगा? वालेकुम।
हाँ करो, एक्सप्लेन करो। सर ये 12 वोल्ट बैटरी बैटरी हमारी 12 वोल्ट आ रहे हैं बक कन्वर्टर में, उसका आउटपुट 5 वोल्ट बन जाएगा। उसके बाद 5 वोल्ट क्यूटो आर्डिनो मेगा कभी बक भी कन्वर्टर, बक 12 कन्वर्टर का इनपुट तो 12 वोल्ट से, आउटपुट कितने वोल्ट्स करेगा ये? 5 वोल्ट। सही है, ठीक है। 5 वोल्ट उसके बाद ऑर्डिनो मेगा में जा रहा है, 5 वोल्ट ऑर्डिनो मेगा में जा रहा है। बाकी जो सारी डिवाइसेस है ना वो ऑर्डिनो मेगा में कनेक्ट है, जैसे ब्लूटूथ बजर, सर्वो मोटर, हमारे गियर मोटर भी ऑर्डिनो से कनेक्ट है। उसके बाद मोटर ड्राइवर में 2 मोटर हैं, व्हील की मोटर है, वो मोटर ड्राइवर में कनेक्ट है। ये जो सिस्टम आपने इसमें ब्लॉक डायग्राम शो की है, ये मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम है? सर ओपन लूप सिस्टम है। सर तो ये ओपन लूप है। तो ओपन लूप सिस्टम के अंदर जो है वो मुश्किलात और ख़तरा ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। तो इसको आपने क्लोज लूप वाले इसमें क्यों नहीं सोचा, क्योंकि आप क्लोज लूप उसमें करेंगे तो बेसिकली आप इसका एक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं। हम लोगों ने SDP2 में सोचा हुआ है कि हम लोग इसको क्या नाम है, मैनुअली भी यूज, ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं सर। सही। SDP2 में जब हार्डवेयर पे हम काम करेंगे, जब हमें हर्डल्स वगैरह आएंगे तो हम उसको रिकवर इंशाल्लाह कर लेंगे। चलो आगे आगे बढ़ो। सर ओडिनो मेगा में हमने जो बोर्ड, ओडिनो मेगा मतलब माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, इसका बोर्ड हमने 2560 इसका बोर्ड है। इसका नाम है ATM मेगा 2560। ओडिनो मेगा इसलिए यूज किया है कि वो हाई स्पेसिफिक मेमोरी है। इसमें सर 54 डिजिटल पिंस फॉर इनपुट, 54 डिजिटल आउटपुट इनपुट पिंस हैं। 15 पिंस इसमें PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए यूज हो रही है, मतलब स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही है। और इसकी एनालॉग साइड 16 इनपुट पिंस हैं। बक कन्वर्टर इसलिए यूज किया है, बक कन्वर्टर स्टेप डाउन के लिए यूज होता है। इनके आपस में इनपुट आउटपुट रिलेशन वोल्टेज है। इसमें लो पास फिल्टर यूज हो रहा है जो इंडक्टर और कैपेसिटर से बन रहा है। लो पास फिल्टर इसलिए लगा है बक कन्वर्टर में लग रहा है, हम आउटपुट स्मूथ DC वोल्टेज चाहिए हमें। 12 वोल्ट DC सप्लाई रिड्यूस हो रहा है 5 वोल्ट पे। 5 वोल्ट इनपुट बना रहा है थ्रो माइक्रो इनपुट बना रहा है माइक्रो कंट्रोलर थ्रो बक कन्वर्टर के। सर इसमें हमने गियर मोटर यूज किए, इसलिए गियर मोटर यूज की है तो क्योंकि गियर मोटर ज्यादा लोड उठाने के लिए यूज की है। गियर मोटर ज्यादा लोड उठाती है और गियर मोटर ज्यादा टॉर्क के लिए यूज होती है। मतलब जैसे हम चाह रहे हैं जहाँ पे अच्छी तरह सफाई करे, क्योंकि वो एक टॉर्क बनता है। जितना टॉर्क होगा उतना जोर जोर लगेगा बुशेस पे। सर्वो मोटर सर इसलिए यूज की है कि सर्वो मोटर एक खास डिग्री पे शाफ्ट की ओर रोके, या एक खास एंगल पर रोके। जैसे कि हमने इस पे सर्वो मोटर पे हमने स्पेसिफिक डिग्री एंगल देंगे। मोपिंग के हिसाब शुरू में रोबोट में खड़ा होगा 90 डिग्री पे। फिर हम काम करवाएंगे 0 डिग्री पे। फिर हम उसकी स्पीड से जी आगे आगे बढ़े।
सर सज्जाद भी हैं, वो भी कुछ सवाल करेंगे आप लोगों से। हेलो जी बोले कुछ, क्या आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। यस सर, बोल रहे हैं। कंक्लूजन हमने मार्केट रिसर्च की है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट हैं सेल्फ कंट्रोल क्लीनिंग रोबोट खरीदने में, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट मार्केट में साइजेबल है। फ्यूचर में हमने बहुत फ्यूचर में जो प्रॉब्लम पार्टिकल अप्लाई रिसर्च में हमने फ्यूचर में हम और रिसर्च करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी हम और रिसर्च करेंगे, और इसमें टूल फॉर लाइफ लॉन्ग हम अपने प्रोजेक्ट में ऐसे टूल्स लगाएंगे जो लाइफ लॉन्ग चले, और इसको हम टिपिक पे भी सेल करेंगे, टिपिक में रख के सेल करेंगे। ये पार्टिकल रिसर्च क्या होती है? जी सर। ये पार्टिकल रिसर्च क्या चीज होती है? पार्टिकल रिसर्च कहाँ लिखा है? और ये है ना पार्टिकल अप्लाइड रिसर्च। सर हम लोग अपने जो जो हम लोगों ने इस पे पार्टिकल्स यूज किए हैं उसके बारे में सर। कहाँ है पार्टिकल, कहाँ है बताओ जरा मुझे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहाँ है पार्टिकल लिखा हुआ। सर बक कन्वर्टर वगैरह यूज किए, ऑर्डिनो मेगा यूज किया है, मोटर गेयर यूज किए, मोटर सर्वर यूज किया है। ये पार्टिकल है तो वहां पर तो लिखा हुआ है प्रैक्टिकल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये? सॉरी सर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई सर, ये थोड़ी है? क्या है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है सर थोड़ी। ये पार्टिकल एंड अप्लाइड रिसर्च, तो ये फ्यूचर कमर्शलाइजेशन एवेन्यू में लिखा है तुमने पार्टिकल एंड अप्लाइड रिसर्च। चलो प्रैक्टिकल की जगह पार्टिकल था, तो ये पार्टिकल मतलब ये जो तुमने ये यूज किए उसकी रिसर्च, उसकी रिसर्च से तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या ताल्लुक है? सर हम अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च करेंगे, हम लोग इसके फ्यूचर में क्या चीज़ इम्प्लीमेंट न्यू कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी जो तुमने ये बक कन्वर्टर और गियर मोटर और सर्वो मोटर जो यूज किया है, यस सर। तो उससे उससे इस प्रोजेक्ट का क्या ताल्लुक है? अभी तो तुमने जो एक्सप्लेन कर दिया वो हो गया, उसके ओके बाद सर। आगे आगे इसमें तुम क्या तीर मारोगे, मतलब ये मुझे जरा समझा दो। सर हम इसको ऑटोमेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं, और हम तो लोगों ने ये भी अभी तुम ऑटोमेटिकली यूज नहीं कर रहे हो? सर फिलहाल हम लोग मोबाइल कंट्रोल एप्लीकेशन से यूज़ कर रहे हैं, और क्या नाम है, दो मोड इसमें रखेंगे हम, ऑटोमेटिकली भी और मैनुअल भी। ये जरा ऊपर से स्लाइड दिखाओ जरा, पहली पहली स्लाइड से। अच्छा, ये अच्छा पे ये दूसरी स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड पे, ये तीसरी पे जाओ जरा। एक मिनट, तीसरी पे, अभी चौथी पे चले गए हो तुम। इसके बाद नीचे चौथे पे जाओ जरा। फिफ्थ पे जाओ। उसके बाद आगे। प्रेजेंटेशन ना मुझे टेक्निकल नहीं लगी आपकी, मतलब सेमेस्टर प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे तो, ये आपका एक पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है, मतलब क्योंकि आप सब चीजें। ये ये जरा एक मिनट बिलाल, जी जी। ये जरा मुझे ये ब्लॉक डायग्राम जरा दोबारा समझाओ क्या है, मैं मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था। जी 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 सर। हेलो जी बोले। सर, इसमें ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी आ रही है बक कन्वर्टर में, उसका आउटपुट 5 वोल्ट बन जाएगा। 5 वोल्ट बन जाएगा, फिर वो 5 वोल्ट ऑर्डिनो मेगा में जाएगा। फिर जो ये सारी जो डिवाइसेस कनेक्ट है ना, वो ऑर्डिनो मेगा में कनेक्ट है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट है, बजर कनेक्ट है, सर्वो मोटर कनेक्ट है, गियर मोटर कनेक्ट है, फिर मोटर ड्राइव भी कनेक्ट है। मोटर ड्राइव में दो मोटर्स लगी हुए हैं, दो सिंपल मोटर्स लगी हुए हैं जो हमारे व्हील को मतलब मूव करेंगी। तो दो की क्यों जरूरत पेश आई है? एक मोटर से काम नहीं हो सकता था?
बिल्कुल हो सकता है सर एक मोटर से काम, लेकिन हमने क्लीनिंग एफिशिएंट चाहते हैं, उस वजह से। क्या चाह रहे थे? वही मतलब दो मतलब अगर और ज्यादा अच्छी क्लीनिंग चाहिए तो हम 5 मोटर लगा दें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, लेकिन इसी ब्लॉक डायग्राम पे नहीं चलेगा, उस पर थोड़ी ज्यादा मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये वाटर पंप क्या कह रहा है? सर वाटर पंप तो सिर्फ जस्ट वो क्या नाम है, मॉपिंग सिस्टम पे ऊपर सिर्फ पानी फेंकने के लिए यूज किया हुआ है, ताकि वो उसके ऊपर ब्रशेस के ऊपर तो पानी फेंके और वो जो नीचे। पानी है वो किससे गिरेगा? वो मतलब उसके लिए कोई मोटर होगी या क्या होगा? वो कैसे गिरेगा पानी? सर वो जैसे वाटर पंप में हम सिग्नल आएगा, ओडिनो से सिग्नल आएगा ना, वाटर पंप चलेगा। हम जितना भी वो प्रोग्रामिंग में सेट करेंगे, जितना भी पानी हम फेंकेंगे ना वो प्रोग्रामिंग में सेट करेंगे, फिर उसके मुताबिक वो सफाई कर देगा। वो सिग्नल आएगा ऑर्डिनो से, ऑर्डिनो मेगा से। अच्छा, तो ये इसकी तुम लोगों ने कहा कि जी हमने इसकी मार्केटिंग की है तो हमें बड़ी अच्छी रिस्पांस मिली है, तो जरा उसका कोई डेटा है? कोई कहाँ मार्केटिंग की है? सर मार्केटिंग इस लिहाज से की कि हम लोगों ने पूछा लोगों से ना, कुछ लोगों को इनकी नॉलेज नहीं थी कि ये है क्या चीज। फिर? और कुछ को हमने समझाया कि इस तरीके से, कुछ को हम लोगों ने वीडियोस वगैरह दिखाई, क्योंकि चाइना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो इन्होंने अगर ये इंट्रोड्यूस किया चीज था। ऑलरेडी बनी हुई है तो तुम लोगों ने इसमें क्या मतलब नई चीज क्या लेकर आ रहे हो तुम? अगर एक चीज बनी हुई है मार्केट में अवेलेबल है तो तुम्हारी बनाई हुई चीज कोई क्यों लेगा? सर फर्स्ट चाइना ने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने हाँ, बहुत एफिशिएंट ठीक प्रोड्यूस है किया तो हुआ है। हाँ, फिर अब बहुत तुम एफि क्या करोगे उसमें? सर उन्होंने हम लोगों से उनका डिफरेंस है सर, डिफरेंस इसलिए है कि हम लोग मोबाइल कंट्रोल कर रहे हैं और वो और मोबाइल से कंट्रोल नहीं हो रहा है उसका? नो सर, उनका मोबाइल कंट्रोल नहीं है। और सर वो चार्जेबल है सर, उसकी जैसे चार्ज खत्म हो जाएगी, वो चार्जेबल है, वो खुद ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। उन लोगों ने एक उनका इसका प्रॉपर मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसका वो इक्विपमेंट लोगे और उसको सिर्फ प्रोग्राम करके और मोटर ये अपना इससे मोबाइल से तुम चलाओगे, ये मतलब है? नहीं सर, ये बिल्कुल मतलब नहीं है फिर मतलब अगर तुम दोबारा उस सर। चीज को बनाओगे जो एक मतलब मैनुअल मैनुअल ऑपरेटेड मशीन अवेलेबल है, तो तुम्हारी मशीन कोई क्यों खरीदेगा? अगर तुम खुद कह रहे हो कि वो बड़ी एफिशिएंट बनाई हुई है और हमने सिर्फ उसमें प्रोग्रामिंग की है, तो तुमसे हम क्यों खरीदेंगे, ये मुझे बता दो जरा। सर उन्होंने उनकी जो डिवाइस थी ना, उनमें सर उन्होंने वाटर पंप वगैरह यूज नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ तो फिर वो नो मॉपिंग मशीन कैसे हुई फिर? सर, एक मैं बता रहा हूँ, उन्होंने एक प्रॉपर उनका स्टेशन बनाया हुआ था जहाँ पे वो उसको खुद कॉल कर रहा था कि भाई आपके नीचे से मॉप्स डर्टी हो गए, आप दोबारा वापस आ जाओ स्टेशन। तो वो वहाँ जाके स्टेशन पे जाके अपने मॉप्स को फिर दोबारा क्लीन करके और उनको वेट करके फिर दोबारा उसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे वो छोड़ के आया था अपनी क्लीनिंग। और तुमने ये चीज जो है वो अपनी मशीन में बिल्ट इन कर दी है, ये मतलब बिल्डिंग है? कर दी कि हमारी उधर ही मतलब उधर ही हमारे मॉप्स क्लीन होते तो रहेंगे ये ड्यूरिंग जो क्लीनिंग। ये जो तुमने कहा कि वो जो है मोड़ मतलब वापस स्टेशन पे जाते थे, तो क्या ये बहुत बड़ा इक्विपमेंट है क्या? सॉरी सर, मैं समझा नहीं। मतलब तुमने अभी ये कहा ना कि जो चाइना वालों का बना हुआ है वो बहुत मतलब वो वापस स्टेशन पे जाते थे पानी भरने के लिए, यस सर। तो तुम्हारा वाला जो है उसमें मतलब ये तुमने बिल्ट इन जो बनाया है तो उसमें पानी कितना होगा? सर वो तो हम लोग खुद कुछ भी छोटा सर टैंक रख सकते हैं। वो हम अपने मुताबिक मतलब प्रोग्रामिंग में सेट करेंगे ना, जितना मतलब पानी होगा ना उतनी सेट करेंगे जितना हमें कितना होगा? चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कितना होगा वो तो बताओ। सर हम लोग कुछ भी उसके ऊपर बोतल टैंक रख सकते हैं कि हम लोग उसमें इतना मिलीलीटर पानी फिल कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग पंप 12 वोल्ट जो वाटर पंप है उसके थ्रू हम लोग उस पे ब्रशेस पे वाटर सिर्फ फेंकेंगे। अच्छा, इसका साइज क्या होगा? मशीन वाटर ये जो पूरा मशीन जो बनेगी उसका साइज क्या होगा? सर कंस्ट्रक्शन साइज। मैं ये कह रहा हूँ ये जो तुम्हारा पूरा मशीन जो बनेगी उसका साइज क्या होगा, मतलब उसका वेट कितना होगा, ये कुछ पता है? सर वेट तो हमारा होगा 5 kg तक वेट होगा। 5 kg तक वेट होगा? यस और सर। साइज कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी होगी मशीन? सर साइज
फिलहाल सर हम लोग वो पीसीबी डिजाइन करके उसी हिसाब से सर उसका साइज रखेंगे। तो ये जो तुमने मतलब अब ये इसमें जो वाटर पंप होगा, ये जो वाटर टैंक होगा, वो कितना, वो उसका साइज क्या होगा, कितना सर पानी होगा एक वक्त में उसमें? सर वाटर पंप तो सर 12 वोल्ट का छोटा ही होता है काफी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें पानी, तुमने कहा ना कि हम इसमें स्टोर करेंगे, तो वो पानी कितना होगा? स्टोर नहीं करेंगे सर, हम लोग उस पे एक बोतल रखेंगे, फिल्ड वाटर रखेंगे, जैसे रेगुलर घरों में यूज होती है फुल फिल्ड वो वाटर। कितनी कितने तो लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, एक 20 नहीं लीटर? सर, 1 लीटर 1.5 लीटर इस हिसाब से हो सकती है। 1 लीटर, तो 1 लीटर से तो सिर्फ एक कमरा साफ होगा इससे तो। नहीं सर, वो कंटिन्यू नहीं फेंकता रहेगा ना सर, उस पे डिले हुआ होगा। हाँ हाँ, तो फिर भी मतलब ये कि एक लीटर बोतल से तुम तो आधा कमरा भी नहीं साफ कर सकोगे। नहीं सर, हो जाएगा, एक कमरा हो कैसे हो जाएगा फुल। जाएगा, कैसे हो जाएगा? सर जो बॉक्स हैं वो इतनी जल्दी तो सर नहीं होंगे ना ड्राई। मतलब एक बोतल पानी अगर मैं कमरे में फेंकूं तो मेरा ख्याल है कि शायद वो 3-4, वो जो एक 1 बाय 1 फीट के जो ब्लॉक्स होते हैं, तो 5-6 ब्लॉक्स ही बनेंगे, मतलब टोटल पूरा कमरा तो उससे नहीं होगा, बिल्कुल एक सर लीटर नहीं बॉटल होगा, से। बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर एक आप कपड़ा ले लें और उसी के ऊपर फेंक दे पानी, तो उससे तो सर आप कमरा साफ कर सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे मॉप्स हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होंगे, उस पे पानी आएगा तो सर वो दोबारा वेट हो जाएंगे, वो क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहेगा। आपके एडवाइजर कौन है? सर सर सफीउद्दीन कादरी। सफीउद्दीन, तो उनसे कोई हेल्प ली थी इस सिलसिले में, उनसे उन्होंने अप्रूव किया था बिल्कुल इस सर, प्रोजेक्ट को? वो कॉन्टेक्ट, सर वो ये सर साथ हम उन्हीं से बाकायदा कॉन्टेक्ट में थे। अच्छा, ये इसके अगली स्लाइड दिखाओ जरा। तो ये इसकी इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है? ये आर्डिनो क्या करेगा बेसिकली, उससे क्या चीज तुम अचीव करना चाह रहे हो? सर ये आर्डिनो इसलिए यूज़ किया है कि हमें आर्डिनो के ज़रिए हम आगे जो हमारे सर्वोमीटर, ये हो गई गियर मोटर हो गई, वाटर पंप हो गई, उसको हम सिग्नल देंगे। सिग्नल डायरेक्ट नहीं कर सकते, सिग्नल देंगे फिर वो चलेगा। और आर्डिनो मेगा इसलिए यूज़ किया है कि इसकी मेमोरी स्पेस ज़्यादा है। किसकी मेमोरी ज्यादा है, किससे? आर्डिनो मेगा की मेमोरी स्पेस ज़्यादा है, इसलिए किससे? मतलब आर्डिनो यूएनओ से। आर्डिनो यूएनओ, यूएनओ कौन सा होता है? आर्डिनो यूएनओ कौन सा होता है? आर्डिनो उनो होता है सर, जो माइक्रो कंट्रोलर ही है, लेकिन सर एज कम्पेयर टू हाँ, तो आर्डिनो। आर्डिनो आर्डिनो ऊनो होता है। यस सर, आर्डिनो उनो आर्डिनो होता है। यूएनओ, यूएनओ कौन सा होता है? मतलब ये तो उनो उनो यूनाइटेड सर, नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है। आर्डिनो उनो होता है सर। अच्छा, नीचे जाओ जरा। और नीचे जाओ जरा, ये बक कन्वर्टर के बाद। तो ये गियर मोटर क्या करेगी इसमें? किस चीज की स्पीड को कम या ज्यादा करेगी ये? हेलो? हेलो। यस सर, गियर मोटर इसलिए यूज किए कि गियर मोटर ज्यादा लोड उठाने के लिए यूज किए। नहीं, ज्यादा लेकिन ये लोड उठा। किसको, किस चीज की स्पीड को बढ़ाने या रिड्यूस करने के लिए यूज होगा? सर ये गियर गियर की स्पीड कंट्रोल कर लेगी ना। नहीं नहीं, ये किस चीज का गियर, कौन सा, मतलब गाड़ी का गियर है या क्या है, ये कौन सा गियर है? सर जो मोटर के अंदर शाफ्ट लगी है ना, उस उनके लिए। अच्छा, उस मोटर में जो शाफ्ट लगी हुई है, तो वो शाफ्ट आगे जाके किसको चला रही है? कोशिश को सर, किसको? कोशिश जो बुशेस लगे हुए ना उनको चला रही है सर।
को चला रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ाने और कम करने से क्या होगा? सर गियर मोटर की स्पीड बढ़ाने या कम करने से ये होगा कि हमारा टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो उतनी तेज़ रगड़ाई से ना वो उसको ज़्यादा रगड़ाई करेगी, और जितनी तेज़ ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा लेकिन क्लीनिंग वो तो प्रोसेस मैं होगा। मान लिया, लेकिन मैं अभी भी पानी के ऊपर मुझे मेरी सुई अटकी हुई है अभी भी। मुझे पानी तो सर मतलब आप 1 लीटर पूछ लें पानी सर। से तो कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या पूछूं, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ मैं वही पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर। अब मैं अगर एक मार्केट में जाऊं और आप कहें कि जी वो 1 लीटर पानी से जो है वो पूरा कमरा साफ हो जाएगा, तो वो तो मुझे उतरती नहीं है बात। सर वो फिक्स थोड़ी ना है सर, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया है कि हम लोग 1 लीटर पानी रख सकते हैं। अच्छा, और नीचे जाओ जरा, क्या ये तो तुमने यहाँ पर सर्वो मोटर तो लिख तो दिया है, लेकिन इसमें तो तुमने इसको सिर्फ डिफाइन कर दिया है। आपकी इसमें जो है वो इसमें कहाँ यूज हो रहा है ये सर्वो मोटर तुम्हारा? सर ड्राइंग सर जो हम ड्राई करा रहे हैं ना हम अपने फ्लोर को, वहाँ पे हम लोग सर्वो मोटर यूज कर रहे हैं सर, रोबोट के बैक साइड पे। तो चलो जी, पानी तो तुमने डाल दिया, उसको ड्राई किस चीज से करवाओगे फिर? सर जो रोलर नहीं होता बैंड का सर, उससे। रोलर? किस चीज का रोलर होता है? सर वो जो रोलर नहीं होता, रोलर जिससे पेंट करते हैं, उस हाँ रोलर हाँ, से डाई होगा। अरे उससे ड्राई होगा तो, और जो तो उसके बाद इसमें ब्रश भी होंगे आगे? ब्रशेस तो सिर्फ सर मोटर क्या नाम है सर, गियर मोटर को आगे मॉप्स लगे होंगे उसके लिए यूज हो रहा है सर। सर्वो मोटर जस्ट ड्राइंग के लिए मोड। लेकिन वो मतलब ब्रश किस लिए यूज कर रहे हैं? मैं मतलब ब्रश मॉपिंग के लिए यूज हो रहा है ना? यस, यस सर, वो मोप के लिए यूज हो मॉप रहे के हैं। लिए तो तुम्हें मॉप बोलना चाहिए, तुम उसको मतलब उसके साथ मशीन के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हो। अच्छा, तो सर्वो मोटर तुम कह रहे हो कि उसको ड्राई करने के लिए यूज करेंगे, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी? सर हमारी जो कॉस्ट आ रही है सर एग्जैक्ट 20 to 25। 25,000? 20 to 25,000। अच्छा, और मार्केट में जो मिल रहा है ऑलरेडी वो कितने का है? सर 17,000। 17? यस 17,000? तो सर। तुम्हारे वाले में और उसमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? किसमें किसमें सर? जो मार्केट में अवेलेबल है और जो तुम बना रहे हो उसमें? सर पाकिस्तान में नहीं है अवेलेबल ये चीज़। सर पाकिस्तान में नहीं है ये चीज़ अवेलेबल। इंडिया एंड चाइना में अवेलेबल है सर। इंडिया की जो मार्केट प्राइस है वो सर 17,000 है। इंडिया में 17,000 है, तो यहाँ पहली मर्तबा आएगा इसका मतलब ये? यस सर। अच्छा, और तो अभी तुमने कितने लोगों से इसमें इंटरव्यू किया था? मीन सर इंटरव्यू मीन्स? इंटरव्यू मींस मतलब मार्केटिंग के लिए तुमने कहा ना कि हमने लोगों से बात की और उनको समझाया, तो कितने लोगों से बात की तुमने अब तक? सर 70%। 70%? 70% ऑफ? नो सर मैं बोल रहा हूँ 70% मार्केट में हमने लोगों से बात की, हाँ हाँ, जिसमें तो से 30% को 70%, तो ये 30% को तो ये नॉलेज। 70% मतलब मैं अगर 70% तुम कह रहे हो, तो 70% ऑफ द मार्केट, तो कौन सी मार्केट का 70% कवर किया तुम? सर हमने अपने एरिया की। अपने एरिया कौन सा तुम्हारा एरिया है? सर गुलशन। गुलशन? तो गुलशन में तुम अगर एक दुकान में गए और उसको तुमने 70% कंसीडर कर लिया, नहीं सर एक को नहीं बोला, मैं एक को नहीं किया सर। सर और कितनी फ्रेंड्स एंड फैमिली कितनी से भी डिस्कस किया है, एंड सर रिलेटिव से भी डिस्कस किया है। सर 30% लोग ऐसे थे जिनको उनकी नॉलेज भी नहीं थी।
70% को पता था ये? नो सर, 40% को पता था। तो उस 70% के 40% को पता था और 30 को यस नहीं सर। पता था, ये मतलब? नो सर। यस सर। और लेकिन 70% सर इंटरेस्टेड हैं सर ये चीज़ खरीदने में। तो मतलब वो एज ए दुकानदार या एज ए कस्टमर? सर कस्टमर भी और दुकानदार भी। चले बिलाल आप जरा पूछ लें कुछ सवाल, तो मैं थोड़ा सा उससे अंदाजा लगाऊं। जी सर, मैं सही के प्रेजेंटेशन जो पहले इन्होंने प्रीवियसली प्रेजेंट की थी, मतलब उसके अगर हम उससे कंपेयर करें तो ठीक है। मतलब चीज़ें काफ़ी बुलेट पॉइंट्स में भी हैं और अरेंज भी हैं, और तस्वीरें भी इन्होंने जो है लिमिटेड डाली है और काफ़ी रिस्ट्रेंट किया, तो वो एक लुक थोड़ा बेहतर है पहले से। तो उसके लिए तो पहली बात ये कि इनको मैं ये करता हूँ कि चलो ठीक है, इन्होंने थोड़ी मेहनत की है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है, थैंक यू अप्रिशिएट सर। करता हूँ। तो थैंक यू ठीक है, सर। मगर इसमें यही है कि थोड़ा सा जो है ना प्रेजेंट आइंदा के लिए ये कि प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ना और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि उसमें जो भी आप इंशाल्लाह करेंगे, सर्किट्स वगैरह बनाएंगे और जो भी कोडिंग वगैरह करेंगे और जो भी इसमें और आप काम करेंगे ना, उसको एक सॉलिड प्रूफ उसका लेके आए, ताकि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है ना, वो टेक्निकली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और साउंड हो। क्योंकि अभी थोड़ा सा ये ना इसमें अगर लोग देखिए, जैसे आपने चीज़ें बताई तो फिर हमें समझ आई कि हाँ भाई इन्होंने ये काम भी किया, ये काम भी किया है। तो जो काम आपने किया है अब तक, उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है और लोगों के आगे शो करना है, वो स्किल्स भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उसको भी ज़रा जो है ज़रा पॉलिश करें अपनी चीज़ों को। बिल्कुल सर, हम इसमें यस ऐड सर। ऑन करेंगे चीज़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी सवालात तो सर सज्जाद ने काफ़ी हद तक पूछ लिया, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको क्रॉस चेक कर लिया। तो बिल्कुल। इसमें फर्दर जो है मैं आपसे इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछना चाहूँगा। बस इसमें आपकी बस वही है कि प्रेजेंटेशन वगैरह को जो आइंदा भी कभी बनाया करें तो उसको सही तरीके से जैसे अगर आपको ये दूसरा मौका दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ज़िंदगी में और कहीं दूसरे मौके मिले। तो इस जो भी आपको करना है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करना है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आप कोशिश करें कि उसको जो है परफेक्ट करें, ताकि अगला जो बंदा है वो फुली आपसे इम्प्रेस हो जाए। ये वाली बात। इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सर। जी ये है। चलें ठीक है, बस आज के लिए मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी अगर सज्जाद को और कुछ कहना है तो नहीं बाकी बस ठीक है। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू ग्रुप फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।